भारत की जो चुनौतियां हैं उनको सुलझाने के लिए वो पूरी पूरी तरह से जिम्मेदार है और अपनी नाकामी से बचने के लिए, अपनी नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर पर्दा डालने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप 53 महीने से इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, क्यों आप लोगों को यह नहीं बताते कि जब कच्चे तेल की कीमत लगभग $58 पर बैरल पर आ गई है, तेल और डीजल 90 रुपए पे क्यों बिक रहा है? क्यों प्रधानमंत्री जी इस देश को नहीं बताते कि एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों बिक रहा है? क्यों प्रधानमंत्री जी इस देश को नहीं बताते कि रुपए की कीमत इतनी क्यों गिर गई है? आज रुपया इतना नीचे आ गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया आज तक राफेल को लेके? क्यों प्रधानमंत्री जी इस देश को यह नहीं बताते कि आरबीआई की स्वायत्तता के ऊपर सरकार ने क्यों प्रहार किया था? और क्यों प्रधानमंत्री जी लोगों को यह नहीं बताते कि जिस सरकार ने 10 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, उस सरकार ने 53 महीने में 8 लाख नौकरी के अवसर भी नहीं पैदा किए। तो क्योंकि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उनके ऊपर उनसे अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जब चुनाव आता है तो ये पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड शुरू कर देते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि 2014 में लोगों ने आपको मैंडेट दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था, और उस मैंडेट पे खरा उतरने की जगह जो वायदे आपने किए थे उस पर चर्चा करने की जगह ये निरंतर और लगातार जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड है, ये आप क्यों कर रहे हैं? If you want to repeat in English, I can do it. Otherwise, we can just move on. Okay. Elections or the polling in Chhattisgarh is already over. Madhya Pradesh will vote tomorrow. And all the feedback which is coming in suggests that people in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan, in Telangana want a change. They are wanting to change the incumbent governments, and the obvious preference is the Indian National Congress. However, today we want to raise a very fundamental question. A fundamental question about campaign styles. We saw that playing itself out in Gujarat.
We have again seen it playing itself out in these 4 states. Why does the Prime Minister of India need to practice the politics of victimhood? Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. He is fundamentally and primarily responsible for finding solutions to the problems of India. But neither do you hear the Prime Minister talking about either the challenges which people are facing or the performance of the NDA BJP government. We do not hear from the Prime Minister that when crude is less than $60 a barrel, why is petrol and diesel selling at 90 rupees to a litre? We do not hear an explanation from the Prime Minister why is an LPG cylinder at 1,000 rupees. We do not hear an explanation from the people, from the Prime Minister, why the rupee is at an all-time low. We don't hear a single word from the Prime Minister on the Rafale transaction. We do not hear from the Prime Minister as to why only 8 lakh employment opportunities have been created against 10 crore jobs promised. We do not hear from the Prime Minister why the autonomy of the RBI was attacked. But the only thing that you hear from the Prime Minister are various variants of the politics of victimhood. And we again would like to reiterate that, Mr. Prime Minister, you were given an absolute majority by the people of India. In the remaining days and months of the campaign, we would like to hear from you about the performance of your government. But because your government has not performed, therefore, there is an attempt on a daily basis to deflect from the real issues of the people. Floor is all yours. मनीष जी, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग तरह की बातें होती हैं, तो बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और अम्बाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज दोनों ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। दोनों का कहना ये था कि राहुल गांधी कभी अपने दादा का नाम नहीं बताते, उनका धर्म नहीं बताते, क्या सब ये बताते हुए उनको शर्म आती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने के लिए कहा, मतलब जो प्रधानमंत्री को लिखा है उसमें उन्होंने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं में एक फर्क है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नेताओं के पास गाली गलौज करने का या सार्वजनिक संवाद को गिराने का कोई लाइसेंस है, पर प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व बनता है, जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कल कहा शाम को, कि प्रधानमंत्री जी का एक विशेष उत्तरदायित्व बनता है कि देश में जो संवाद का स्तर है, सार्वजनिक संवाद का स्तर है, उसको एक लेवल पर रखा जाए। और जब प्रधानमंत्री रोज उस संवाद के स्तर को गिराते हैं, और आज से नहीं, पिछले 53 महीने से या पिछले 15 साल से वो ये कर रहे हैं, तो फिर जो बाकी नेता हैं उनको भी ये लगता है कि यही राजनीतिक संवाद की जबान होनी चाहिए। तो इसलिए
आज अगर देश में राजनीतिक संवाद का स्तर गिरा है, उसके लिए सीधे सीधे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं और उनको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात को संज्ञान में लेना चाहिए और जो एक प्रधानमंत्री की मर्यादा होती है, उस प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए। आई हैव आंसर्ड इट फुली। इसी विषय से संबंधित एक ब्लॉग वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से भी आया है। उन्होंने दो तीन सवाल पूछे हैं। क्या सरदार पटेल के पिता का नाम किसी को पता है? क्या उनकी पत्नी का नाम किसी को पता है? वो कह रहे हैं ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स और जिस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री के माँ बाप को चुनावी कैंपेन में ला रहे हैं, तो उसको लेके अरुण जेटली ने ब्लॉग। वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि रुपए की कीमत इतनी क्यों गिर रही है? वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि आरबीआई की स्वायत्तता पर क्यों हमला किया जा रहा है? वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि जब कच्चे तेल की कीमत नीचे आ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है? वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि देश में पिछले 53 महीनों से जो निवेश है वो कम क्यों हो गया है? वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ता जा रहा है? तो दिक्कत यह है कि वित्त मंत्री हर उस चीज के ऊपर बात करना चाहेंगे जो उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है, और उसका कारण साफ है कि वित्त मंत्री जी के देख रेख में देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब वित्त मंत्री जी आप कब देंगे? One second. Your questions almost sound like my book. They've covered a whole range of issues. I'll try and deal with it one by one. Look, the Congress party has never done communal politics. The Congress party does not believe in communal politics. If there has been this one all-enveloping umbrella which has accommodated flowers of every shade and hue, it is the Indian National Congress. So on our pluralistic credentials, on our secular credentials, we neither need a certificate from anybody, nor do we need to answer for that. If our manifesto in a particular state has a particular formulation, that formulation is primarily reflective of the sentiments of the people of that state. And as a responsive, sensitive political party, it is our responsibility to ensure that the sentiments on the ground do get reflected in our articulation, because after all, those are the commitments that we are making to the people of India. On your second question, it's an extremely sensitive question.
Yesterday was the 10th anniversary of 26/11. Perhaps never ever has India been assaulted in this manner. And the fact remains that Pakistan has not acted against the perpetrators of 26/11. That is a reality we must be cognizant of. On Kartarpur Sahib, there was a long-standing demand of the Sikh community in Punjab and at other places, which goes back almost 25 years or if not more, that there should be some modus vivendi which should be worked out so that they can visit their religious places on the other side of the border. And in that context, if there is something happening on Kartarpur, we would not like to stand in the way. But in your dealing with Pakistan, you have to be extremely careful and extremely calibrated. The difficulty with this government or the NDA BJP government has been that they have swung from the sublime to the ridiculous in their policy towards Pakistan over the past 52 or 53 months. जम्मू कश्मीर के गवर्नर का एक बयान आया, उसके बाद तुरंत वो अपने बयान से पलट गए। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि विधानसभा भंग करने का जो फैसला मैंने लिया वो केंद्र सरकार के कहने पर लिया। अब आप भी कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा खुद का फैसला है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दिल्ली की तरफ देखता तो सज्जाद लोन को सीएम Look, the governor of Jammu and Kashmir, the more he tries to justify, the more he's tying himself up in knots. The fact remains that what the governor of Jammu and Kashmir did on that night was nothing short of a command performance. And he did it on the instructions of Delhi. And the governor of Jammu and Kashmir has done long-term damage to India's interests in Jammu and Kashmir. That's a reality which unfortunately will have implications in the future also. So, what Governor Satpal Malik is trying to do is really emulate his masters in Delhi, who have done a PhD in flip-flop, U-turns, somersaults. And the reality is that, like the Pakistan policy, the NDA BJP government has no policy towards Jammu and Kashmir also. देखिए, राज्यपाल श्री सतपाल मलिक ने उस रात जिस तरह की भूमिका निभाई है, उससे भारत के जो सामरिक इंटरेस्ट हैं उनको एक दूरगामी क्षति पहुंची है। और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होने वाले हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है कि जो भी गवर्नर मलिक साहब ने किया था वो दिल्ली के कहने पे, दिल्ली के इशारे पे किया था। क्योंकि जिस तरह के बयान अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव की तरफ से आए, वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि भाजपा नहीं चाहती थी कि अगर उनकी या उनकी समर्थित सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बन रही तो कोई और सरकार बननी चाहिए। और जो राज्यपाल महोदय कर रहे हैं वो शायद दिल्ली से प्रेरणा ले रहे हैं, जहां पे एनडीए भाजपा के नेताओं ने समरसॉल्ट, यू टर्न, बैक फ्लिप में पीएचडी कर रखी है।
हम उम्मीद करते हैं कि उनके बयान को न्यायपालिका जरूर अपने संज्ञान में लेगी। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन रावत जी, मार्गदर्शक श्री के राजू जी, हमारे साथी भक्त चरण दास जी, डॉक्टर राजकुमार विरका जी, मंचासीन हमारे सभी साथीगण, दूर दराज से आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर नितिन रावत जी को कि आज आपने जो ये संविधान सम्मान समारोह रखा है, हमारे प्रिय नेता, देश के प्रिय नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए इस देश के निर्माण में उनके सहयोग को याद करते हुए आज आपने ये कार्यक्रम रखा। सारी दुनिया जानती है कि जो हमारे पास आज ये ग्रंथ है, भारत का संविधान, इसके मुख्य रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। केवल इसलिए नहीं कि वो दलित थे, लेकिन उस समय के हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, सभी उस समय के बड़े नेताओं ने देश भर में नज़र डाली कि हमारा देश आज़ादी के बाद क्या बनेगा, उसकी नींव कैसे रखी जाएगी, उसके लिए एक रूपरेखा बनानी होगी, एक प्रारूप बनाना होगा, और उसके लिए देश भर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इसकी सदारत कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, हमारे देश के संविधान की रचना करनी थी। चेयरमैन जिसको बनाया गया वो अपने आप में केवल एक दलित व्यक्ति नहीं था कि किसी दलित को कहीं बिठाया जाए। सबसे काबिल व्यक्ति देश का, पढ़ा लिखा, अपनी सोच समझ रखने वाला, देश के भविष्य के लिए सोचने वाला, देश के समाज के लिए सोचने वाला, ऐसा व्यक्ति केवल एक व्यक्ति था और वो थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपनी काबिलियत के दम पर संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा गया। और बहुत से साथियों ने उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उस समय की बहस देखी होगी, टीवी में पढ़ा होगा कि एक एक तर्क, एक एक बहस का जवाब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपनी इंटेलेक्चुअल जो उनकी सोच थी उसके मुताबिक दिया। और जो अभी शरद यादव जी कहकर गए, हर धर्म के लिए उसका सबसे बड़ा ग्रंथ क्या होता है, चाहे वो गीता हो हिंदुओं के लिए,
चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो। और एक देश के लिए, देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ होता है ये संविधान। और ये ग्रंथ इस देश को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। इस ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ में इस देश की विविधता को समझते हुए एक समानता दी, एक समता दी कि जो सदियों से, हजारों साल से हमारे देश में एक सिस्टम चला आ रहा था, ऊंच नीच का, जातिवाद का, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबको, सभी लोगों को इस आधुनिक भारत में एक समानता मिलनी चाहिए। और उस समानता के लिए जिसकी नींव हमारे देश के नेताओं ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी, उस समानता के लिए आज भी उसी तरह का संघर्ष चल रहा है। क्योंकि बाबा साहेब ने क्या कहा था कि जब तक ये सामाजिक सोच नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी नियम, कानून, कायदे ये बेमायने हो जाते हैं। और आज भी वही सोच है। बल्कि मैं समझती हूँ कि उस समय तो जो कांग्रेस पार्टी थी और हमारे दूसरे नेता थे, उनकी एक मॉडर्न सोच थी, आधुनिक सोच थी कि देश को हम आधुनिक बनाएं, जहाँ इस तरह की असमानता ना हो, सामाजिक असमानता ना हो और केवल इंसान हो। पर आज 70 साल हम मनाएंगे, जो 1949 में 26 नवंबर के दिन ये संविधान पारित किया गया। अगले साल हम 70 साल मनाएंगे। क्या 70 साल बाद हम आगे बढ़े हैं? कांग्रेस पार्टी की जो भी कमियां रही हों, जिसके कारण देश के लोगों ने, एक लोकतंत्र ने हमें समय समय पर बताया भी कि आप रास्ते से भटक गए हो, और हमने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। लेकिन 70 साल में जिस तरह की शक्तियां उभर कर आई हैं, जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, आज वो हमें नसीहत देना चाहते हैं, इतिहास को दोबारा लिखना चाहते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करके संविधान को दोबारा लिखना चाहते हैं। आज देश को चुनौती है इस तरह की सोच के सामने। ये इस तरह की शक्तियां, फिरका परस्त शक्तियां जो सिर उठा रही हैं, आज देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? मंदिर, मस्जिद, किस तरह की बातों में बांटना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक धर्म है, एक धर्म के लोग हैं, मेजॉरिटी में हैं। तो ये एक दिखावा है, लीपापोती। पहले हमें, और ख़ास करके जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिन वर्गों से हम लोग आते हैं, सबसे पहले हमने ये सवाल पूछना चाहिए इनसे, इस तरह की शक्तियों से जो ये हिंदूवाद की बात करते हैं, कि पहले हमें हिंदू की परिभाषा तो बताइए। कौन है हिंदू? जो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें हमारी क्या जगह है? पहले ये बताइए। हमारे जैसे लोगों की क्या जगह होगी? पहले आप अगर हिंदू की बात करते हैं तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी इस हिंदू रचना में जातिवाद की क्या जगह है? क्या आप इसी जातिवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जब आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, कौन होगा उसमें? क्या फिर से जो 70 साल की हमारी लड़ाई रही, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
इस मनुवादी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये संविधान रचा, देश को ये ग्रंथ दिया, क्या आप इस ग्रंथ को खत्म करना चाहते हैं? हिंदू की बात करके गुमराह मत कीजिए। पहले जातिवाद पर आइए, पहले जाति की परिभाषा हमें बताइए, देश को बताइए, दुनिया को बताइए कि उसमें हमारे लोगों का, उनका क्या हिस्सा होगा। आप तो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं। आपके इस जिस भारत की बात करते हैं, इसमें कोई समानता नहीं है, कोई समता नहीं है, गरीब लोगों की बात नहीं है। इस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कहीं मंदिर बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? क्या आज के दिन जब हम 70 साल आगे बढ़ गए हैं, क्या आपने इन बातों को, इन चुनौतियों को समझा जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने और कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी? आज के दिन भी ऐसा क्यों होता है कि जिन मंदिरों की आप बात करते हैं, आज भी जगह जगह पर अगर कोई दलित उस मंदिर में चला जाता है तो उसके बाद वहां पर धुलाई की जाती? क्यों होता है ऐसा? क्या इसके खिलाफ आपने बात की? क्या इसके खिलाफ आपने जंग लड़ी, कोई संघर्ष किया? पहले इन बातों का जवाब दीजिए, पहले समाज की असमानता का जवाब दीजिए, उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए। ये चुनौती है और ये हम सबको समझनी। जो ये लोग ये पर्दा डालते हैं असलियत पर, लोगों को धर्म के नाम पर उकसाते हैं, क्या आपको हमारी महिलाएं नजर नहीं आती? उनके बारे में आप क्या करते हैं? जो दिन प्रतिदिन अत्याचार हमारे लोगों पर होते हैं और पिछले 4 साल में वो बढ़ते ही गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है। डॉक्टर विरका, आप तो कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, रिकॉर्ड की बातें हैं ये। जो दलितों पर अत्याचार इनके समय में बढ़ते गए, उसका तो जवाब दीजिए। कौन देगा उसका जवाब? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है आपका जो दलितों पर अत्याचार होता है? और अगर दलित बिना किसी राजनीति के, कांग्रेस पार्टी कभी उसका हिस्सा नहीं थी जो 2 अप्रैल को हुआ। ये लोगों में अपने आप एक उफान आया, अपने हक के लिए नौजवान सड़कों पर उतरे, उनके खिलाफ आपने जगह जगह पर उनको जेलों में ठोका। और उनके खिलाफ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में और जगह वोट के लिए, राजनीति के लिए दूसरे लोगों को उकसाते हैं। आप पहले ये बता दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या हमारे को जो इस संविधान के द्वारा इस देश ने हमें जो हमारा आरक्षण दिया था, हमें जो हमारा हक दिया था, क्या वो आज पूरा हो चुका है? सब जानते हैं, गांव-गांव में जाइए, गली मोहल्ले में जाइए, आज के दिन भी वो समानता नहीं आ पाई, क्योंकि आप वो सोच इस देश में आने नहीं देंगे। आज के दिन हमारा नौजवान है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप बात करते थे 2 करोड़ रोजगार की, कितने रोजगार दिए? उनमें से हमें कितना मिला? जो संविधान के तहत हमें मिलना चाहिए, कितने रोजगार दिए आपने? हमारे लड़के लड़कियां कहाँ जाएं? आप कहते हैं शिक्षित हो, बाबा साहेब की बात सुनकर शिक्षित होते हैं, लेकिन आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इस पर एक वाइट पेपर निकालिए कि हमारे लोगों को क्या मिल रहा है।
कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं गाय के नाम पर होता है, कहीं धर्म के नाम पर होता है। सबसे ज़्यादा उसमें कौन पिसता है? हमारे लोग, गरीब, दलित, कुचले लोग, वो पिसते हैं। हमारे नौजवानों को, उन्हें भी एक समानता से इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी व्यतीत करने का हक है। उन्हें भी हक है कि नौकरियां मिले, उन्हें भी हक है कि वो आगे बढ़े। देश के निर्माण की आप बात करते हैं, जब तक ये असमानता रहेगी और आपकी सोच इस असमानता को कभी खत्म नहीं होने देगी, तब तक कौन सा निर्माण होगा, कौन सा विकास होगा, किसकी आप बात कर रहे हैं? तो कृपया करके इन बातों से हम सबको आगाह रहना है। हमारे नौजवानों को, जो कि आज के दिन सब बात समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ी, हमारे लिए हमको लड़नी पड़ेगी, आगे आने वाली नस्ल के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश भर में लड़नी पड़ेगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि विदेश में भी, हमारे विदेश से भी कुछ लोग आए हुए हैं। हमने देखा है विदेशों में, चाहे इंग्लैंड हो, कनाडा हो और भी दूसरे देशों में, वहाँ भी अभी असमानता इसी तरह से चली गई। हमारे लोगों ने मेहनत की है। पंजाब से कितने लोग विदेशों में गए, मेहनत की, लेकिन अभी भी ये भेदभाव खत्म करना होगा। और हमारे लिए, हम सब के लिए अगर एक कोई रास्ता है तो वो ये संविधान है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में हमारी लड़ाई हमेशा लड़ी गई, हमारी आवाज़ को सुना गया। आज हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी लड़ाई लड़ते हैं। हमें फक्र है, हमें गर्व है अपने नेता पर, राहुल गांधी पर, कि वो हमारी पीड़ा को समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं। वो हमारे दर्द को समझते हैं, इसीलिए हमारे देश में अगर कोई रास्ता है हमारे लिए तो वो कांग्रेस पार्टी है। वरना लोग चाहे दूसरी पार्टियां लें, हम चाहे अब क्या नाम लें यहाँ पर, चाहे बीएसपी लें, चाहे दूसरी पार्टियां लें, वो केवल हमारे नाम पर वोट बटोरने का। मुझे ये बता दीजिए कि इन पार्टियों में क्या कोई भी दलित उभर तो सकते हैं? क्या कोई भी दलित नेता ऊपर आ सकते हैं? आप किसी और पार्टी में आप नहीं देखेंगे। कांग्रेस ही यही रास्ता दिखाती है और हमारी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। और राहुल गांधी जी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात का हमें बहुत बहुत गर्व है। हमारे और नेता भी आ गए हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगी कि मैं आज आपने डॉक्टर रावत बहुत बढ़िया ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये मौका होता है जब हम अपने अपने विचार रख सकते हैं। लोग हमारे लोग दूर दूर से आकर बातें सुन सकते हैं। दूसरे नेता भी आए हैं, इनके भी विचार हम सुनेंगे। बहुत बहुमूल्य विचार सबके होंगे। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। छत्तीसगढ़ के चुनाव संपन्न हो गए हैं और मध्य प्रदेश में कल मतदान होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जो रुझान, विश्लेषण और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आ रही है, उससे एक बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि ये वक्त है बदलाव का। छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, तेलंगाना की जनता
सब बदलाव चाहते हैं और बदलाव का जो झुकाव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ है। पर आज हम जिस विषय पे आपसे चर्चा करना चाहते हैं, एक बहुत ही विचित्र संवाद पिछले गुजरात के चुनाव में भी और ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें दिखने को मिला है। और क्योंकि इसका हिंदी में कोई सही से तर्जुमा नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करूंगा, प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड। पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड। देखिए, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे ये 5 राज्यों का चुनाव हो, प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि श्री नरेंद्र मोदी इस देश के हुक्मरान हैं और भारत की जो समस्याएं हैं, भारत की जो चुनौतियां हैं, उनको सुलझाने के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार है और अपनी नाकामी से बचने के लिए, अपनी नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर पर्दा डालने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप 53 महीने से इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, क्यों आप लोगों को यह नहीं बताते कि जब कच्चे तेल की कीमत लगभग $58 पर बैरल पर आ गई है, तेल और डीजल 90 रुपए पे क्यों बिक रहा है? क्यों प्रधानमंत्री जी इस देश को नहीं बताते कि एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों बिक रहा है? क्यों प्रधानमंत्री जी इस देश को नहीं बताते कि रुपए की कीमत इतनी क्यों गिर गई है? आज रुपया इतना नीचे आ गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया आज तक राफेल को लेके? क्यों प्रधानमंत्री जी इस देश को यह नहीं बताते कि आरबीआई की स्वायत्तता के ऊपर सरकार ने क्यों प्रहार किया था? और क्यों प्रधानमंत्री जी लोगों को यह नहीं बताते कि जिस सरकार ने 10 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, उस सरकार ने 53 महीने में 8 लाख नौकरी के अवसर भी नहीं पैदा किए? तो क्योंकि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उनके ऊपर उनसे अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए
जब चुनाव आता है तो ये पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड शुरू कर देते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि 2014 में लोगों ने आपको मैंडेट दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था, और उस मैंडेट पे खरा उतरने की जगह जो वायदे आपने किए थे उस पर चर्चा करने की जगह ये निरंतर और लगातार जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड है ये आप क्यों कर रहे हैं? If you want to repeat in English, I can do it. Otherwise, we can just move on. Okay. Elections or the polling in Chhattisgarh is already over. Madhya Pradesh will vote tomorrow. And all the feedback which is coming in suggests that people in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan, in Telangana want a change. They are wanting to change the incumbent governments, and the obvious preference is the Indian National Congress. However, today we want to raise a very fundamental question. A fundamental question about campaign styles. We saw that playing itself out in Gujarat. We have again seen it playing itself out in these 4 states. Why does the Prime Minister of India need to practice the politics of victimhood? Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. He is fundamentally and primarily responsible for finding solutions to the problems of India. But neither do you hear the Prime Minister talking about either the challenges which people are facing or the performance of the NDA BJP government. We do not hear from the Prime Minister that when crude is less than $60 a barrel, why is petrol and diesel selling at 90 rupees to a litre? We do not hear an explanation from the Prime Minister why is an LPG cylinder at 1,000 rupees. We do not hear an explanation from the people, from the Prime Minister, why the rupee is at an all-time low. We don't hear a single word from the Prime Minister on the Rafale transaction. We do not hear from the Prime Minister as to why only 8 lakh employment opportunities have been created against 10 crore jobs promised. We do not hear from the Prime Minister why the autonomy of the RBI was attacked. But the only thing that you hear from the Prime Minister are various variants of the politics of victimhood. And we again would like to reiterate that Mr. Prime Minister, you were given an absolute majority by the people of India. In the remaining days and months of the campaign, we would like to hear from you about the performance of your government. But because your government has not performed, therefore, there is an attempt on a daily basis to deflect from the real issues of the people. Floor is all yours. मनीष जी, जैसा कि आपने खुद ही कहा
बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और अम्बाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज दोनों ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। दोनों का कहना ये था कि राहुल गांधी कभी अपने दादा का नाम नहीं बताते, उनका धर्म नहीं बताते, क्या सब ये बताते हुए उनको शर्म आती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने कहा, मतलब जो प्रधानमंत्री को लिखा है उसमें उन्होंने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं में एक फर्क है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नेताओं के पास गाली गलौज करने का या सार्वजनिक संवाद को गिराने का कोई लाइसेंस है, पर प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व बनता है, जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कल कहा शाम को, कि प्रधानमंत्री जी का एक विशेष उत्तरदायित्व बनता है कि देश में जो संवाद का स्तर है, सार्वजनिक संवाद का स्तर है, उसको एक लेवल पर रखा जाए। और जब प्रधानमंत्री रोज उस संवाद के स्तर को गिराते हैं, और आज से नहीं, पिछले 53 महीने से या पिछले 15 साल से वो ये कर रहे हैं, तो फिर जो बाकी नेता हैं उनको भी ये लगता है कि यही राजनीतिक संवाद की जबान होनी चाहिए। तो इसलिए आज अगर देश में राजनीतिक संवाद का स्तर गिरा है, उसके लिए सीधे सीधे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं, और उनको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात को संज्ञान में लेना चाहिए, और जो एक प्रधानमंत्री की मर्यादा होती है, उस प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए। आई हैव आंसर्ड इट फुली। इसी विषय से संबंधित एक ब्लॉग वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से भी आया है। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं। क्या सरदार पटेल के पिता का नाम किसी को पता है? क्या उनकी पत्नी का नाम किसी को पता है? वो कह रहे हैं ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स, और जिस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री के माँ बाप को चुनावी कैंपेन में ला रहे हैं, तो उसको लेके अरुण जेटली ने ब्लॉग। वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि रुपए की कीमत इतनी क्यों गिर रही है? वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि आरबीआई की स्वायत्तता पर क्यों हमला किया जा रहा है? वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि जब कच्चे तेल की कीमत नीचे आ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है? वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि देश में पिछले 53 महीनों से जो निवेश है वो कम क्यों हो गया है? वित्त मंत्री इस बात पे ब्लॉग क्यों नहीं लिखते कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ता जा रहा है? तो दिक्कत यह है कि वित्त मंत्री हर उस चीज के ऊपर बात करना चाहेंगे जो उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है, और उसका कारण साफ है कि वित्त मंत्री जी के देख रेख में देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब वित्त मंत्री जी आप कब देंगे? One second.
questions almost sound like my book. They've covered a whole range of issues. I'll try and deal with it one by one. Look, the Congress party has never done communal politics. The Congress party does not believe in communal politics. If there has been this one all-enveloping umbrella which has accommodated flowers of every shade and hue, it is the Indian National Congress. So on our pluralistic credentials, on our secular credentials, we neither need a certificate from anybody, nor do we need to answer for that. If our manifesto in a particular state has a particular formulation, that formulation is primarily reflective of the sentiments of the people of that state. And as a responsive, sensitive political party, it is our responsibility to ensure that the sentiments on the ground do get reflected in our articulation, because after all, those are the commitments that we are making to the people of India. On your second question, it's an extremely sensitive question. Yesterday was the 10th anniversary of 26/11. Perhaps never ever has India been assaulted in this manner. And the fact remains that Pakistan has not acted against the perpetrators of 26/11. That is a reality we must be cognizant of. On Kartarpur Sahib, there was a long-standing
आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण